So, students, here we are today to do something very special. This is combined class of class 12th PCM and PCB. That's why number of students is little bit more than it should be. But more number of students is because I have combined both PCM and PCB. Today we are going to discuss something very special, something very important for the future of our students. So, all of you are going to appear in your board examination, which will be held in the month of March. Roughly I have counted 100 days are left. Less than 100 days. But why I am saying 100 days? Because in between two papers there are some gaps. According to me, you have to work, study for a period of 100 days. What is the theme of this meeting? Theme is here. 100 days are left and you have to give your 100%. You have to give your 100%. You have to not focus on 100 days. You have to focus on 100%. Now the question arises, how can a student give his or her 100% on a study? प्रॉब्लम क्या है स्टूडेंट के साथ मैं आपको बताता हूँ. स्टूडेंट ये बोलता है सर बी अर्ली राइजेस इन द मॉर्निंग, गेट रेडी फॉर द स्कूल, कम टू स्कूल. What is his or her sentence? In school are 5 or 6 hours are wasted. At least 5 hours in study and 1 hour in journey. So I am just going to discuss on this 5 hours or 6 hours. This during journey. How can you utilize these 6 hours? How can you utilize these 6 hours? It means these 6 hours will be included in your study time. How can you do it? This is the thing. And when you will be able to study for these 6 periods, that will be called 100% effort, 100% utilization of the time. If you go in any coaching institute to any your relative to understand something, or you watch anything on YouTube, whatever it is, you have to be focused. How will you do it? If you are doing everything every day according to rules and regulation and according to the method which I will today explain to you, there are 24 hours in a day. How many? 24 hours in a day. So people say that sir, in 24 hours we spend 6 hours in school, 2 or 3 hours in coaching. So 6 plus 4, 3 or 4, 10 hours and 2 hours in other activities. We have left only 12 hours. In remaining 12 hours, we have to do a lot of written work. So, when we will prepare our means PCM, learning, practice, etc. I am just going to discuss with all of you. I know you have a lot of problems, but some students are not present here. Some students of my school or some other schools or students of all over the India or all over the world are facing these type of problems. Okay, so here I will give with the help of all of you a solution that how can you overcome all these problems and you can utilize your maximum time in learning, studying, etc. Okay, are you ready? Yes, sir. Okay, so our mission starts from your very first hour, that is when you just sit in your bus. First hour, you just come to your stop and sit in the bus. So you have to, during that journey, that may be 15 minutes, that may be 30 minutes, you have to just memorize, think,
what study in this particular chapter, which topics I have means study, what I have learned. For example, I am just taking an example which is common for both PCM and PCB. In class 9 we were taught a chapter motion. There were 3 equations of motion. So क्या टॉपिक थे उसमें? भाई उसमें सर पहले ना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया गया था. तो डिस्टेंस से स्पीड आया था, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी आया था, फिर ग्राफिकली उसमें सिखाया गया है हाउ टू डिराइव 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन. v = u + at, s = ut + half at square, v = u square + 2as. और उसके बाद व्हाट आर द यूजेस ऑफ दिस वेलोसिटी, टाइम ग्राफ एटसेट्रा एटसेट्रा. तो ये चीज जितनी तेजी से मैं बता रहा हूँ, मैं क्यों बता पा रहा हूँ? क्योंकि मैं चीजें लगातार पढ़ रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ. भाई क्लास पढ़ाता हूँ ना, तो आपको ये चीज जो होती है, ये जो प्रोसेस होता है, जो आप जर्नी में आ रहे हैं 15-20 मिनट या आधे घंटे जा रहा है, तो इस प्रीवियस डे में जो आपने पढ़ा है किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर को लेकर या किसी चीज को लेकर, तो आप जब इसे मेमोराइज करते हो ना कि क्या क्या पढ़ा, कैसे हुआ, तो बेटा दैट इज सम काइंड ऑफ रिवीजन. ये रिवीजन कहलाता है. यू आर स्टडीइंग एट दैट टाइम. होता क्या एक्चुअली, स्टूडेंट सिट इन द बस एंड दे आर इन्वॉल्व इन गॉसिप्स. बातें कर रहे हैं एंड यूजलेस गॉसिप, गुड फॉर नथिंग. यू जस्ट सिट, टेक योर सीट एंड जस्ट मेमोराइज. यस, स्टडी इन द फिजिक्स, I study this particular topic. Suppose anybody is just a student of class 9. Derivation of kinetic energy. क्या था भाई काइनेटिक एनर्जी का? फॉर्मूला तो हाफ एम बी स्क्वायर होता है. क्या था उसमें, क्या दिया था, समझ क्या बताया था उसमें? ये बताया था कि थर्ड इक्वेशन जो होता है, वर्क जो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. हाँ, होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. अब भाई डिस्प्लेसमेंट जो कैपिटल एस होता है उसको कहाँ से लाया गया था? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v = u square + 2s. s आया था v square - u square 1/2as, और वर्क डन = फोर्स इनटू डिस्टेंस. तो फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, और डिस्टेंस की जगह v square - u square 0.2a कट गया वहां पे, और तुम्हारा आ गया 1.2m v square - u square. फिर इसमें बताया गया कि ऑब्जेक्ट इनिशियली अगर रेस्ट में होगा u 0 रखेंगे और हमारा आ जाएगा हाफ एम बी स्क्वायर. और ये जो वर्क डन हुआ है इसको काइनेटिक एनर्जी क्यों कहते हैं? बिकॉज दिस वर्क हैज बीन डन ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी. डेफिनेशन क्या होती है काइनेटिक एनर्जी? एनर्जी पॉसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी. उसने पूरा रिवाइज कर लिया काइनेटिक एनर्जी जो उसने कल पढ़ी थी. विद इन 3 मिनट्स पूरा रिवीजन कर लिया. और इस तरीके का रिवीजन बेस्ट रिवीजन होता है बेटा. इसे हिंदी में मनन कहते हैं. क्या कहते हैं? मनन. ये आपको करना चाहिए, और इसके लिए आपको शांत रहना पड़ेगा, स्थिर रहना पड़ेगा. आपको बता दूं कि अगर आपका ब्रेन स्टैग्नेंट नहीं होना चाहिए. स्टैग्नेंट मींस आप अपने आप को कंसंट्रेट कर रहे हैं. यू आर जस्ट कंसंट्रेटिंग योरसेल्फ. कल जो पढ़ा था एक बहुत छोटा सा आपको मैं बता दूं, थोड़ा सा समय तो जा रहा है, कि आप अपनी मेमोरी पढ़ा सकते हो. When you are going to sleep in the night, you just memorize all your activities since morning to you are going to sleep. उसके बीच का जो भी एक्टिविटी आपने किया ना उसको याद करने की कोशिश कीजिए. पहले दिन आप 1 मिनट में पूरा कर लेंगे क्योंकि ढेर सारी चीजें छूटेंगी. दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 10 दिन में देखना टाइम आपका बढ़ता जाएगा. इट मींस योर ब्रेन इज स्टोरिंग ए लॉट ऑफ मेमोरीज. ये चीजें होती हैं, छोटी छोटी चीजें होती हैं, लेकिन मेहनत तो बहुत लोग कर रहे हैं. मेहनत तो एक रिक्शा चलाने वाला भी कर रहा है. अब मेहनत हमारे मुकेश अंबानी भाई साहब भी कर रहे हैं. एक्शन इन राइट डायरेक्शन, एक्शन इन राइट डायरेक्शन, एंड इन गाइडेंस ऑफ एनी मेंटर, एनी टीचर. आज हम उस लेवल के नहीं है, लेकिन हम चाहेंगे कि आपके पास वो चीज पहुंचे. तो आप समझ गए, जब आप सफर कर रहे होते हैं, बस में होते हैं, उस समय भी आप पढ़ सकते हैं. जरूरी नहीं कि आप कॉपी निकाल के बैठे हैं और पढ़ रहे हैं. आप सोच सकते हैं. अच्छा मान लो आपको आगे डाउट, अरे यार यहाँ पर तो मैं भूल गया, अरे बैग रखा है, निकालो यार, देख लो कहाँ फंसेंगे, कैसे होगा. हाँ भाई, मैंने अभी तक जितनी बातें वट एवर आई हैव टोल्ड टू यू, आपको ऐसा, आपने कभी ऐसा किया है कि नहीं किया है? किया है समटाइम्स.
नॉट डेली। देखिए बच्चा बोल रहा है आई हैव डन सर बट नॉट डेली एंड फॉर आई थिंक फॉर ए पीरियड ऑफ 5 or 7 minutes दैट शुड बी 15 minutes 20 minutes फॉर द कंप्लीशन ऑफ द चैप्टर होना चाहिए सर, राइट? प्लीज सिट डाउन। मिस्टर जितेंद्र, योर नेम इज जितेंद्र। तो अभी देखिए ये बताएंगे मुझे, अभी आपको मैथमेटिक्स में क्या पढ़ाए थे, क्या पढ़ा रहे हैं? सर मैथमेटिक्स में अब वेक्टर चल रहा है। वेक्टर अलजेब्रा चल रहा है। 3 टॉपिक पढ़ाई बताइए जो मैंने आपको अभी करेंटली पढ़ाया है वेक्टर अलजेब्रा में। बोलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर वेक्टर अलजेब्रा में आपने लाउडली थोड़ा आवाज, थोड़ा पास जाओ भाई। हाँ बोल। सर ये वेक्टर का यूनिट वेक्टर पढ़ाया आपने। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1। वेरी गुड, आगे बताओ। और आपने वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन कराया। 2 टाइप के मल्टीप्लिकेशन होते हैं, कौन कौन से? प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। वेरी गुड। देखिए ये चीजें जब ये करेंगे, a डॉट b क्या होता है, फार्मूला बताइए। a डॉट b इज इक्वल टू a डॉट b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ b cos। नॉट डॉट आई हैव टोल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos। ये चीज, अब देखिए ये चीज अगर मेमोराइज करेंगे, और मैंने ये वीडियो में बोला है, रिकॉर्डिंग में है, when you are writing a dot b is equal to magnitude of a magnitude of b cos theta, you have to not write dot because magnitude of a magnitude of b is a constant, उसके बीच क्या डॉट लगा रहे, वैसे लगा दोगे तो वो तुम्हारा कोई गलती नहीं है। सो देखिए जैसे कि ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड के बीच डॉट लगाते हैं, वैसे भी कहा जाता है x डॉट y का मतलब x into y होता है, कोई मसला नहीं, लेकिन लगाना ना कोई सही रहेगा। प्लीज सिट डाउन, थैंक यू। अब देखिए दुबे, अनुराग दुबे, अनुराग दुबे PCM, आपको डिफिकल्टी कहाँ महसूस होती है? फिजिक्स में। देखिए टेक्निकल सब्जेक्ट, भाई सबको दिखाओ फिजिक्स में किसको किसको प्रॉब्लम होती है, प्लीज रेज योर हैंड। My son has passed class 12 in this current year, 92%, but he always complains to me that I'm facing a lot of problem in physics. Physics का syllabus थोड़ा सा difficult होता है. Actually, when I was a student, there was something different with physics. That's why my father wanted that you have to do MSc in physics and you have to focus yourself on physics. But I was little bit feeling difficult in physics, a little bit relaxed in mathematics. So फिजिक्स का, लेकिन अब मेरे को आगे समझ में आया है कि फिजिक्स में आप रटने की कोशिश बिल्कुल मत करें। रटने, ये जो मैं वेक्टर वाला टॉपिक लाया हूँ उसमें क्या है कि वेक्टर वाले टॉपिक का ये जो मैं भी बात कर रहा हूँ, ये फिजिक्स में आपके साथ भी होता होगा। अरे कहीं ना कहीं तो होता होगा कि आप डॉट प्रोडक्ट करते हुए क्रॉस प्रोडक्ट करते होंगे, तो ये सारी चीजें आती हैं। तो सबसे पहले तो इधर आ जाइए जरा। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कोई चीज कठिन नहीं। कठिन कब तक है? जब तक आप उसे समझ नहीं पाए। प्रॉपर तरीके से समझने की कोशिश करो, प्रैक्टिस करो, मेहनत करोगे, सब चीजें समझ में आ जाएगी। प्लीज सिट डाउन। हाँ जी, तो पीयूष चौधरी कुमार कितनी देर आप सेल्फ स्टडी करते हैं? सर 3 to 4 hours। 3 to 4 hours पर डे। अब देखिए यहाँ मैं सबके लिए कर रहा हूँ, मैं पीयूष के लिए नहीं कर रहा हूँ। अगर ये सेल्फ स्टडी 3 आवर्स की करते हैं तो मैंने आपको बता दिया यू हैव टू बी वेरी सिंसियर इन क्लासरूम। क्लासरूम में आपको बहुत सिंसियर रहना है एंड यू हैव टू लिसन टू योर टीचर विद फुल कंसंट्रेशन। दैट विल बी काउंटेड एज योर स्टडी टाइम, क्वालिटी स्टडी टाइम, because if any doubt arises you will get the solution on that particular time. So 5 hours in school, 4 hours at your home, 5 hours in school, 9 hours. But this you go to coaching etc. 1 or 2 hours? No sir, कोई बात नहीं. But then you have to increase your self study time. How many days are left? 100 days. 100 days, 100% effort means you have to not waste your single means fraction of second. मैं सेकंड की बात नहीं कर रहा हूँ, मिली सेकंड भी मत कर देना, माइक्रो भी मत कर देना, नैनो भी मत कर देना। 100% एफर्ट यही तो कराता है। होता है कि नहीं होता है? सिट डाउन प्लीज। आप बताइए, मैं एक चीज, बहुत सी चीजें डिस्कस करूंगा। मैं पीसीएम और बी पे तो फोकस नहीं करूंगा। 3 और सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश, पीएचई एंड हिंदी।
आपके पास क्या है? तीनों है। इनको भी 10-10 मिनट का समय दीजिए। सबके लिए बोल रहा हूँ, सबको कवर कर रहे हो ना? सबके लिए बोल रहा हूँ, सबको 10-10 मिनट समय देना है। These 3 subjects will give you 270 marks out of 300 minimum. 270 marks, your percentage will jump, बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। ठीक है? योर गुड नेम मगन, कर रहे हैं हार्ड वर्क। क्या है मतलब परसेंटेज, क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? Approximately 85 to 90. इन बिटवीन 85 एंड 90 कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपके पास इतना समय है कि आप इसको कर सकते हैं, बट यू हैव टू फॉलो दोज रूल्स कि आप तो घर पे रहते हैं ज़्यादातर, तो उसमें आप ऐसा करिए कि देखिए दिन भर आप बुक खोल के बैठे हैं और पढ़ रहे हैं, तो वो एक मेथड है, बुक खोल के पढ़ना, प्रैक्टिस करना। जस्ट क्लोज योर बुक एंड ओपन योर माइंड। आज क्या पढ़ा, कैसे होता है, ये चीज जो होती है ना, ये चीज आपके ब्रेन में उसको मैं क्या बोलूं, सेव करती है। क्या करती है? सेव करती है। और जो चीज एक बार सेव हो गई ना, उसको डिलीट नहीं होगी अगर इंटेंशनली उसे डिलीट ना किया जाए। राइट? हाँ जी मुनेश जी, पहले तो बाल छोटे करवा लेना, ठीक है? आगे बताइए कि मैथ्स में कोई दिक्कत होती है? नहीं होती दिक्कत। मेहनत में कमी है? सही बताना ऑनेस्टली, जितनी मेहनत होनी चाहिए उतनी नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही? 100 दिन बचे बेटा, आज से 100% शुरू होगा। आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि सर चलो ये सब तो कर रहे हो, अच्छा रिकॉर्डिंग क्यों करवा रहे हो? कोई बच्चा बताएगा मुझे, प्लीज रेज योर हैंड, मैं इसकी रिकॉर्डिंग क्यों करवा रहा हूँ? हाथ ऊपर करेगा जल्दी से, समय कम है, वीडियो बड़ी हो जाएगी, मैं अपलोड नहीं कर पाऊंगा। जल्दी बोलिए। Yes sir. यस प्लीज कम, वेरी गुड। आइए आइए जल्दी आइए। हाँ प्लीज प्लीज। जो बच्चे यहाँ प्रेजेंट नहीं है, जो फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम आपकी तरह, उनके पास टीचर नहीं है प्रॉब्लम्स का सलूशन देने के लिए, ये वीडियो से वो इन प्रॉब्लम्स का सलूशन देख सकते। बहुत हल्का सा क्लैपिंग करेंगे, बहुत जोर से नहीं। वेरी नाइस। Some students of my school are today absent, and some students of other school who are facing these types of problems, and they do not have, unfortunately, they do not have teachers, mentor to do all these things. That's why I am recording this. Please sit down. Sit down. Any student of PCB? I am just saying. Where is this? Yes, Veda. Please stand up. Physics, chemistry, biology. किस में ज्यादा प्रोडक्टिविटी महसूस होती है? फिजिक्स, आगे फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री। देखिए केमिस्ट्री के लिए तो आपको थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, सब लोग सुनिए थोड़ा सा, मुझे मेरा नॉलेज तो भाई 10th लेवल का है केमिस्ट्री का, लेकिन बस यू मस्ट नो द केमिकल फार्मूले एंड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, होता कैसे वो चीज आप करेंगे। एंड यू हैव टू राइट केमिकल रिएक्शंस ऑन योर कॉपी। आप जब लिखना पढ़ना नहीं है, उसको आपको खुद लिखना। लिखना कैसे है? पहले आपने पढ़ लिया, उसके बाद जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल दूं, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, N2 रिएक्ट विद H2 इन द फॉर्मेशन ऑफ NH3, तो इसको बैलेंस कैसे किया जाता है। और इस चीज को फिर आप, मैं वही बता रहा हूँ, इस चीज को सोचोगे, क्लास में पूरा अटेंटिव रहोगे। और लेकिन ये चीज देखिए, जो क्लास में अटेंटिव होने वाली मैं बात कर रहा हूँ बेटा, ये तभी हो पाएगा पॉसिबल जब सभी आप लोग कोई एक दूसरे को डिस्टर्ब ना, कोई एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करे। एवरीबॉडी इज बिजी इन हिज हर वर्क, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करा, सब अपना पढ़ रहे हैं तरीके से, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। आद्या जी प्लीज स्टैंड अप। या आपको क्या लगता है कि ये जो मैंने बताया है बस वाली बात की, बस में बैठ के आप रिवीजन कर सकते हैं, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, कुछ इंप्रूवमेंट आपको लग रहा है कि आपका स्टडी टाइम बढ़ जाएगा? बढ़ेगा डेफिनेटली, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू इंक्रीज योर सेल्फ स्टडी टाइम आल्सो। जो टाइम आपका पढ़ाई में लग रहा है, और इस समय पढ़ाई के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। अगर आप मुझे कहो कि हमारे यहाँ शादी है और हमारे यहाँ वो त्योहार है, हमारे यहाँ क्रिसमस आ रहा है, आई डू नॉट एग्री विद यू। देयर इज नथिंग मोर इम्पोर्टेंट देन स्टडी एट दिस टाइम। मार्च में आप किसको जवाब दोगे, कैसे जवाब दोगे? अभी बीच में प्रैक्टिकल होंगे, कैसे तैयारी करोगे आप? ठीक है? यस प्लीज प्लीज सिट डाउन। कविता जी आप ये बताइए कि अभी आपका मैथ्स
फिजिक्स केमिस्ट्री कितना परसेंट सिलेबस खत्म हो गया? अप्रोक्सीमेटली समथिंग अराउंड कितना खत्म हो गया? वेरी लेस। व्हाई? बहुत कम है। ऐसा क्यों है? अरे यू आर स्टूडेंट, you are here to just study. At least 70% syllabus must be finished. Do you have some health problem? Any other health problem? चलिए कोई नहीं, उसको आप दिखाइए, समझिए और जल्दी से आप सिलेबस को पूजा बताइए आपका कितना परसेंट सिलेबस खत्म हुआ है? अब आपका भी कम है भाई। जहां तक मेरी जानकारी, मैंने मैथमेटिक्स पढ़ाई है और मैथमेटिक्स 70% के ऊपर जा रहा है, 70%। और जो आपका कैलकुलस वाला पोर्शन दैट हैज बीन कंप्लीटली फिनिश्ड, तो करिए आप। वो मैंने आपको बता दिया 6 आवर्स जो उसको आप वेस्टेज में डालते थे, वो मैंने 6 आवर्स आपके लिए क्रिएट कर दिया कि आप उसको प्लस में डाल सकते हैं। और नॉट मोर देन 7 आवर्स ऑफ स्लीप। ध्यान रखें, 7 घंटे से ज्यादा आपको सोना नहीं है। आप या तो उसके 2 पार्ट कर लीजिए, 6 घंटे रात से 1 घंटा दिन में, या रात को 7 घंटे, 6 घंटे और 1 घंटे वाला कॉम्बिनेशन ज्यादा सही रहेगा। और थोड़ा सा स्मॉल नैप लेना सीखें, ठीक है? थोड़ा सा कर लिया, सीधा हो गया, थोड़ा सा पानी वानी पी लिया, कुछ ब्रेकफास्ट ले लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। प्लीज सिट डाउन। 15 जी खड़े हो जाइए। हाँ, आपका सिलेबस। नो टॉक्स प्लीज प्लीज। हाँ, कितना 50? किसमें डिफिकल्टी महसूस हो रही है? चलिए फिजिक्स के लिए हम कुछ ऐसा करते हैं कि आपकी जो समस्या है फिजिक्स वाली, आपका प्लीज, आई एम अगेन रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज दिस मर्मरिंग शुड बी अवॉइडेड प्लीज। मैं आ रहा हूँ, उधर आ रहा हूँ अभी। हाँ बोलिए। ओके, बर्डन लेकिन महसूस हो रहा होगा, एग्जाम पास आ रहे हैं, तो आप ये चीज कीजिए। आप शायद दूर से आते, कहाँ से आते हो आप? गवाना से। देखिए इनकी जर्नी में 1 आवर जाता है, उस 1 आवर को आप यूटिलाइज कर सकते हो। आप जब अपना बैग बस में रखते हो ऊपर, तो जिस चीज का आप रिवीजन करना चाहते हो, वो सब करना चाहते हो, उसको आप क्या करो, उस वाली कॉपी का अपने साथ ले लो, ठीक है? ओके, तो आपके पास अभी 100 डेज है, बहुत कुछ हो सकता है। जस्ट चेंज योर स्ट्रेटजी। उसके लिए हम हैं अभी इस बीच में बात करते रहेंगे, कोई समस्या नहीं। प्लीज सिट डाउन। यस, लावण्य, अनामिका, यू प्लीज असिस्टेंट। आपका सिलेबस कितना खत्म हो गया? लाउडली प्लीज, थोड़ा पास आइए। 70% हो गया है। तो आपको ऐसा लगता है कि जो बातें मैं आज बता रहा हूँ, 100 डेज 100% एफर्ट, इससे थोड़ा सा आपका स्टडी टाइम बढ़ेगा? बढ़ेगा? हाँ बढ़ेगा। अनामिका परफॉर्मेंस और बढ़िया निकल कर आएगी? आएगी? यू कैन डू इट। देखिए केवल स्टडी से मार्क्स नहीं आते हैं, स्टडी का रिवीजन होना मस्ट है। स्टडी का रिवीजन होना मस्ट है। एंड रिवीजन जस्ट नॉट बाय योर कॉपी। यू कैन क्लोज योर आईज, रिवाइड इन योर माइंड, दैट इज द बेस्ट स्टडी। वो एक तरीके का स्टोरेज चलता है, कंटिन्यूस स्टोरेज चलता है, एंड दैट विल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, की रोल, वाइटल रोल इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन and in your competitive examination, JEE main, whatever it is, and for NEET etc. Air Force, in some way, क्योंकि सारी चीजें आपने प्रॉपर तरीके से स्टोर करना। प्लीज सिट डाउन। अंकित, यस एडजस्ट, पीयूष, यस, तीसरा कौन? हाँ देखिए आप तीनों लोग को मेहनत कर रहे हैं, कर रहे हैं? यस सर। देखिए एक्शन इन राइट डायरेक्शन कहा गया है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। सुनिएगा मेरी बात को, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा सिखाया गया है। एंड मैक्सिमम वर्क इज व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। थीटा क्या होता है? 0 का मतलब देयर इज नो डेविएशन, मींस द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मतलब आप में कोई डेविएशन नहीं है। यू आर फोकस्ड जस्ट लाइक अर्जुन। द्रोणाचार्य आस्क्ड टू अर्जुन,
What can you see? Here, only eye of the bird. Only eye of the bird. Only JEE main, IIT, and nothing else, sir. Nothing else. Do you agree with me? 100%? And you, man? नाम बता दो। सेवम प्रताप सिंह। इनको तो भाइयों को भी पढ़ा चुका हूँ। अच्छा करना है, बढ़िया तरीके करना है, बहुत बढ़िया। शाबाश, सिट डाउन। किसी भी स्टैंड अप। आदित्य, बताइए आप ऐसा क्या किया जाए कि आपका, प्लीज रिमेनिंग स्टूडेंट प्लीज लिसन केयरफुली, बात मैं इनसे कर रहा हूँ, आप पे काम आ सकता है। किसी भी गर्ल प्लीज सिट डाउन। हाँ, आप ये बताइए कि हमारी पूरी बॉडी को कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन। क्या दोनों ने एक साथ जवाब दिया? ब्रेन। ब्रेन आपको तो नहीं कंट्रोल कर रहा है। अब देखो ये सवाल बड़ा सवाल है। ब्रेन कहीं आपको तो नहीं कंट्रोल कर रहा है, सबके लिए सवाल है। यू हैव टू कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में चाहिए ब्रेन का। सुन भाई, आज पढ़ेंगे, ब्रेन ना सके आज नहीं कल पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब आपका कंट्रोल तो उसके पास चला गया। ब्रेन इज बेस्ट फ्रेंड एंड ब्रेन इज बिगेस्ट एनिमी। फ्रेंड कब है? जब वो आपके कंट्रोल में है। ब्रेन के आपके पास 2 किडनी है, ब्रेन तो एक ही है, लेकिन ब्रेन 2 होते हैं। मैं प्रूव कर सकता हूं, ब्रेन 2 होते हैं। प्लीज, ब्रेन 2 होते हैं, एक जो पॉजिटिव काम करवाता है, एक जो निगेटिव काम करवाता है। तो निगेटिव वाले को आज ऑपरेशन करके हटा देना। पीसीबी के स्टूडेंट हैं, मिनटों में कर लोगे। निगेटिव वाले को ऑपरेट करके रिमूव कर देना, पॉजिटिव वाला एक्टिवेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, करेंगे? मिस्टर आलोक, हेड बॉय, प्लीज स्टैंड अप। यू आल्सो ऋतिक। ये दोनों भाई क्लास 10 के टॉपर लोग रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छे बच्चे हैं। वी आर एक्सपेक्टिंग ए लॉट ऑफ फ्रॉम दीज स्टूडेंट। दोनों के साथ हम समझते हैं कि ये शायद IIT JEE में मान जाएंगे और एनडी को लेकर जाएंगे। भाई आप कुछ बताओ, आपका तो मुझे मालूम है आपका जो है स्टडी टाइम अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि और भी बेटर हो, बढ़िया हो। ठीक है, तो जरा शेयर करो लाउड आवाज में। पहले आलोक आप बताइए क्या ऐसा हो जिससे कि स्टडी टाइम थोड़ा सा बढ़े। जैसे कि अभी भाई 90+ मार्क्स इनके आए थे, हालांकि बोर्ड का एग्जाम नहीं हो पाया था, बट आई नो बोथ आर वेरी टैलेंटेड। क्या करना होगा, कैसे मतलब स्टडी करने के लिए, मतलब ज्यादा स्टडी कर पाए, इसके लिए क्या करना पड़ता है कि स्टूडेंट? किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर कोई भी एग्जाम हो तो उसके लिए हमें ये देखना होता है कि हम कितने कंसिस्टेंट हैं। कंसिस्टेंसी, देखिए यहाँ पर इन्होंने वर्ड यूज किया है कंसिस्टेंसी। आज आप जोश में आएंगे, आज मैंने बात की 10 दिन पढ़ाई की, 11वें दिन पढ़े हुए हैं। कंसिस्टेंटली वहां 100 डेज हमने इसलिए लिखा बेटे, इसके बीच में नहीं आया था। 100 डेज 100% एफर्ट। अगर मैं क्रिकेट की लैंग्वेज में कहूं, अगर के 20 ओवर का मैच चल रहा है तो 16 ओवर्स हैव बीन फिनिश्ड, 4 ओवर्स आर लेफ्ट। स्लॉग ओवर जिसे कहते हैं, इसमें जितना उड़ा सकते हो बाउंड्री उतनी बाउंड्री उड़ाओ। यू हैव ए लॉट ऑफ विकेट रिमेनिंग। विकेट बचाकर क्या करोगे? यू हैव टू स्कोर मोर रन। जानते हो कि नहीं? और ये जो चल रहा है ना, ये उस T20 मैच में जो आता है ना, 2.5 मिनट का जो ब्रेक आता है उसे क्या बोलते हैं? टाइम आउट। आज टाइम आउट क्या हमने पढ़ाया नहीं। आज वेक्टर अलजेब्रा पढ़ाते 10.4 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट होता। आज उनका जब पढ़ाएंगे नहीं, पीसीबी को बैठेंगे और टाइम आउट करेंगे। और टाइम आउट में वो कोल्ड ड्रिंक आती है, वो बहाना है, उसमें वो लोग प्लानिंग करते हैं कि बचे हुए ओवर में हम कैसे काम करें कि हम सक्सेसफुल हो जाए, जीत जाए, उसके लिए काम कर रहे हैं। ये भी बच्चा मेहनत कर रहा है, ये भी मेहनत कर रहे हैं। देखिए आप ही के बीच से IIT, NIT, AMU, BTech, नीट क्वालिफाई करने वाले, एयरफोर्स में सिलेक्ट करने वाले निकल के आ रहे हुए हैं, होंगे आप ही के बीच से। आपके साथ बैठ के आपके साथ जो टिफिन शेयर करते हैं। देन व्हाई यू कैन आज से भी स्टार्ट करो। हो सकता है 1 साल ज्यादा लग जाए, बंद तो जाओगे। थैंक यू, प्लीज सिट डाउन। हाँ भाई, प्लीज यू चल रही मेहनत भाई, ये क्या बात है? चल रही बच्चे की मेहनत, थोड़ा सा और डरना नहीं, थोड़ा सा और मेहनत बढ़ाओ और बढ़िया तरीके से करो।
और एक जब एक एवरेज बच्चा अच्छी परसेंटेज लाता है ना, जब एक एवरेज बच्चा अच्छा परसेंटेज लाता है ना तो बहुत बड़ा। अभी आपके सामने सचिन का मैंने एग्जांपल दिया था। सचिन 99 परसेंटाइल जेई में NIT जयपुर में पढ़ रहा है। एक एवरेज बच्चा था भाई, बोर्ड पे बुलाता था तो डर के मारे आता नहीं था कि आ जाओ सचिन, डर के मारे आता, सर मैं कॉपी पे कर दूं। ये हो 99 परसेंटाइल इन जेई में जयपुर NIT में पढ़ रहा है। If I am not wrong, after 4 years, he will get a package of 1 crore per annum, and his father is a farmer. बताइए, पूरी हिस्ट्री बदल गई, पूरी परिवार की हिस्ट्री। अगले 100 साल तक उसके द्वारा कमाए हुए जो भी कुछ उसने किया है, और पूरे गांव में इस बात का वो है कि एक लड़का, और गवर्नमेंट IIT में जो सेलेक्ट हुआ, आप ही के बीच तो बैठता था। अरे आप ही जैसा तो बच्चा था। तो अपने आप को अंडर एस्टिमेट कोई नहीं करेगा कि यार हम नहीं कर सकते, तो आलोक और ऋतिक ही कर सकते, हम नहीं कर सकते, सब कर सकते हैं। जो कंसिस्टेंट होगा, आलोक ने जो वर्ड यूज किया ना, कंसिस्टेंसी, करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुदान, रसरी आवत जात से सिर पर परत निशान। बेटा रस्सी की क्या औकात होती है, लेकिन बार बार पत्थर को काट देती है। सभी लोग दम लगा के करेंगे। पंडित जी, सरस्वती जी खड़े हो जाएंगे। प्रशांत आप भी खड़े हो जाइए। अनुज, क्या प्लानिंग है आज के बाद, क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे? जल्दी से बताइए, 2 मिनट समय नहीं है, जल्दी बोलिए। आज से क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे? पहले तो बाल कट जाने चाहिए, ये चेंज हो गया। दूसरा बताइए। 100% पढ़ाई। देखो मेरा आज का जो है बेटा यही है मोटू, 100। आपका हर कदम, हर सोच, हर सेकंड, मैंने कहा नैनो सेकंड वेस्ट नहीं होना चाहिए। दैट शुड बी फॉर स्टडी, दैट शुड बी फॉर स्टडी। आप भी बोलिए यस सर, यस सर, यस सर। सिट डाउन प्लीज। यस ऑल ऑफ यू प्लीज। प्रवीण, हाँ भाई क्या नाम है? मोहित, वेरी गुड। ये बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है आज की तारीख में, आप लोग इसे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। यस, मैंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। प्रवीण तुम्हारे हीरो है। मोहित भी लगे रहते हैं दम लगा के, लेकिन आई हो अगर आप लोग करोगे तो 90 टेस्ट कर दो। और प्रवीण के लिए मेरी प्रिडिक्शन है भाई, लाओ रिकॉर्ड में कर लेते हैं इसे। प्रवीण के लिए मेरी प्रिडिक्शन है कि एटलीस्ट 99% है, एटलीस्ट 99% है प्रवीण की। मैं कह रहा हूं ऑन रिकॉर्ड। और बाबूजी तुम भी 1 साल अगर मेहनत कर गए ना तो तुम्हें भी NIT मिल जाएगी। आलोक IIT के लिए बने हैं, अगर मेहनत करेंगे 1 साल तो ड्रॉप करके, और ऋतिक बने हैं नीट के लिए, उससे कम हमें मंजूर ही नहीं। वंशिका नहीं दिखाई दे रही है, वंशिका की बच्ची वो नहीं आई हुई है। यहाँ पर जितने बैठे हैं कम से कम 12-14 बच्चे ऐसे हैं, मैं ऐसे नाम नहीं लेना चाहिए मुझे, लेकिन मैं बता देता हूँ, आप लोग भी कर सकते हो। अब देखिए अच्छा से अच्छा जो कोचिंग इंस्टीट्यूट होता है, जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट, सॉरी इंजीनियरिंग कॉलेज होता है, जैसे बजाज का है या मथुरा में है, अच्छा है, बड़ा अच्छा पैकेज मिलता है, लेकिन उसके लिए कम से कम आपका 95% तो हो, वो तो आप कर सकते हो। लावण्या जैसे हैं, अब उतना एफर्ट लगाएंगे तो IIT तक नहीं, कम से कम NIT एक से मिल जाएगी, बहुत अच्छी बात है भाई। अनामिका लग रही है, पूरे दिन रात लग रही है, अब वो पता नहीं IIT क्रैक करना चाहते हैं कि NIT में जाना चाहती हैं, वो सब है। आद्या जी है, ये सब बच्चे, ये बच्ची जिसने जवाब दिया था कि ये वीडियो को बनाई जा रहा है, ये सब लग रहे हैं। ये निधि जी है, ये कर रही है मेहनत, PCB वाले स्टूडेंट से मिलते, कहेंगे देखो PCM से बात करें, हमसे तो बातें नहीं करते। आइए नमस्कार, चल रही है मेहनत, आप लोग भी खड़े हो जाइए। चेंजेस क्या देखने को मिलेंगे आज के बाद? चेंजेस बताइए जल्दी करो ना, और बच्चे हैं, हमसे बात करनी है। 100% देंगे। You will not waste your time. You will not watch television. Yes, sir. You will not give even a single fraction of second to in watching means useless videos on mobile. ऐसा कुछ नहीं होगा। You will give your 100%. Yes, sir. देखिए बेटा, मैंने 100 days लिखे हैं। This is for your board examination. But after board examination, next
365 डेज, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि इस पर हम बात अलग से करेंगे, बट 12वीं पास होने से कुछ नहीं होता है। माय सन हैज ऑब्टेन 92%, बट ही इज स्टिल स्ट्रगलिंग। एमयू फिजिक्स ऑनर्स में हो गया है, बट उसका ड्रीम उसको अभी नहीं मिला है। उसके लिए हार्डवर्क कर रहा है, आप लोगों को भी करना पड़ेगा। उसके लिए तैयार हैं? Yes, sir. सिट करण, तरुण, ये लोग तरुण, एक तरुण और पिछले साल के तरुण हमने पास आउट किया था, एक तरुण है करण। इनके पास भाई साहब अकेले 30 हैं, इनके पास मैथमेटिक्स और बायोलॉजी दोनों हैं। तो भाई तरुण जी आप बताइए, मैथ्स बायोलॉजी में क्या अच्छा लगता है आपको? यार बायोलॉजी ड्रॉप कर दो ना, कोई नहीं, मेहनत भी अच्छा है, मेहनत कर रहा है, ये भी सिंसियर बच्चा मेहनत कर रहा है। देखिए ये पांचों उंगलियां बराबर है, ये पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, लेकिन बेटा सबके पास 24 घंटा तो सबके पास 24 ही है, और सबको पूरा राइट है, फंडामेंटल राइट में आता है कि आप अपना 100% दे सकते हो। किसी की कोई पाबंदी नहीं, पेरेंट्स ये नहीं कहते कि नहीं जाओ ये काम करके आओ, कह देना सर ने कहा मना कर दिया है, आई विल नॉट डू एनीथिंग, मैं अपना पढ़ाई करूंगा, और आप मुझसे 31 मार्च तक कोई बात नहीं करेंगे, मैं अपना काम करूंगा। मानो की शादी जा रहा ना, ब्याह में जा रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, और रिकॉर्डिंग और ले लिया मेरा स्टेटमेंट, समझ रहे? सीधा बोल देना, दिखा देना कि देखो रिकॉर्डिंग की है पूरा, हम नहीं कुछ कर रहे हैं, हम केवल अपनी स्टडी करेंगे। और आप इस डिसोबीडियंस के लिए मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, पैर छूटे, ये हम पढ़ने जा रहे हैं बस, और हमारे पास कोई काम नहीं है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। हो गए थे आप सब, कवर हो गए? आओ तन्मय जी खड़े जाइए प्लीज। मनीष जी एंड सचिन, सचिन नाम के वही बच्चे हैं, कंफ्यूजन हो जाता है। खैर तन्मय जी, नो, मैं आपको ऑब्जर्व करता हूं, यू आर नॉट ए हार्ड वर्कर। आज से बनोगे हार्ड वर्कर की नहीं बनोगे? आप अपना टाइम मत वेस्ट किया करिए। यू आर हियर टू स्टडी, यू गो टू कोचिंग टू स्टडी, लर्न समथिंग। करते क्या हो? आई नो एवरीथिंग। बेटा पढ़ लो बेटा, ये तुम्हारा गोल्डन टाइम है। मनीष चेंजेस आएंगे, आएगा। और थोड़ा सा अपनी डाइट पर भी आप लोग ख्याल रखेंगे। डाइट में जब आप लोग हार्ड वर्क करोगे तो ये थक जाता है। 5 आलमंड, 5 बादाम, 1 गिलास दूध। बता देना कि भाई कुछ एक्स्ट्रा खर्चा आ रहा है, कुछ एक्स्ट्रा खर्चा आ रहा है, दे दो। और थोड़ा सा किशमिश, खाना खाओ और योग करो, डीप ब्रीथिंग वगैरह करो। थोड़ा सा टाइम जब मेहनत करोगे भाई, देखो ब्रेन में लोड पड़ता है, शुरुआती में थोड़ा तकलीफ होगी, बट करना तो पड़ेगा ना। जिम जाते हैं तो जिम में शुरुआती 8 दिन में दिक्कत होती कि नहीं होती है? होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टू गेन समथिंग यू हैव टू सफर फ्रॉम द पेन, विदाउट नो पेन नो गेन। ये तो बचपन से किसी फार्मूला होता है, पता नहीं किसी फार्मूला होता है। अरे तुम अकेले कैसे बैठे भाई? सिट डाउन। क्या कर रहे हो? अच्छा शिव कुमार जी, भोलेनाथ है। हाँ, क्या चेंजेस देखने को मिलेगा मुझे? 5 आदमी की आवाज थोड़ी कम है भाई। सर जब करेंगे तो बताएंगे क्या चेंजेस आएंगे। हाँ, ये बच्चा भी सही करेगा कि सर आज कोशिश करूंगा, बताऊंगा क्या क्या चेंजेस आ रहा है मेरे अंदर, कुछ आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, जो चीजें आपने बताई हैं। निखिल भाई तुम भी खड़े हो जाओ। तो आज के बाद आज का स्टडी टाइम में 7 आवर्स प्लस हो गए। कैसे? 1 घंटा जब आप आते हो, या फिर 6 घंटे, या जो स्कूल में आप करते हो, विद फुल अटेंशन। बाल कट हो जाने चाहिए, छुट्टी पड़ेगी बीच में। तुम्हारे भी, ये स्टूडेंट की बाल ऐसे नहीं होनी चाहिए। मेरे बाल देखो, ठीक है ना? और जो मेन मोटो है मेरा, जो मेरे दिमाग में बहुत दिन से बात चल रही थी, लेकिन ये आइडिया भी मैं शेयर करूंगा। थोड़ा सा आप लोग प्लीज कोऑपरेट कीजिए, मैं शेयर करूंगा। मैं सबको कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई ये ना सोचे कि सर मुझसे नहीं यार, पता नहीं क्या क्वेश्चन किया। मैं सबको कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, सभी लोग आएंगे। आपका मुझे स्टडी टाइम जस्ट 2 गुना करना है। प्रोफेसर आप कैसे का 48 घंटे करने जा रहे हैं दिन में? दिन तो 24 आवर्स का ही होगा। मैं उसमें क्वालिटी चेंज लाने जाऊंगा।
और कैसे लाऊंगा मैं आपको बताता हूँ। एक बच्चा हमारा कोने में बैठा हुआ है, स्टैंड अप। पहले तो अपना टारगेट बताइए, क्या करना चाहते हो लाइफ में, जेई में, एनआईटी या आईआईटी? एनआईटी। तो उसके लिए बेटा तुम्हें 99 परसेंटाइल लाना पड़ेगा। कैन यू ला सकते हो? 300 में से 180 मार्क्स आ सकते हैं? आ सकते हैं। कितने घंटे की सेल्फ स्टडी दे सकते हो? 5 घंटे की सेल्फ स्टडी से काम नहीं चलेगा बेटा। अच्छा मान लो तुम 1 साल के लिए ड्रॉप कर दिए, ठीक है, फिर कितने घंटे की सेल्फ स्टडी? हाँ, दैट शुड बी समथिंग अराउंड 12 आवर्स, 50% ऑफ 24 आवर्स। अगर करते हो कंसिस्टेंटली, देन डेफिनेटली यू विल क्रैक मीन्स जेई मेन एंड यू विल बी सिलेक्टेड फॉर एनआईटी। एंड सबसे नियरेस्ट आपका एनआईटी यही जयपुर का पड़ता है, नहीं तो कानपुर वाला दिलवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जान पहचान बहुत है, मेहनत करनी पड़ेगी भाई, ठीक है। सो अब स्टार्ट। बिगेस्ट क्वेश्चन from where I got this idea that there should be a program of like this. 3 or 4 days ago, 2 or 3 days ago, I just posted a video of Mr. Mukesh Ambani who took part in a convocation program. This means convocation program of an university, means distribution of degrees, where he told people that especially to students, it is very special day for you and your parents have suffered a lot for this taking the degree, and in your lingo, his wordings were, in your lingo, today students are too much excited about 4G and 5G, but no one is bigger than Mataji and पिताजी। वहां से मुझे मिला आइडिया कि हमें इन बच्चों को जगाना है। योर पेरेंट्स आर वेरी eagerly waiting for your success, your teachers are waiting, your school is waiting, everyone is waiting। ये मैं सिर्फ आप लोगों से नहीं कर रहा हूं, जो लोग मुझे सुन रहे हैं इस समय, जो लोग पास आउट कर गए हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो कहीं से भी हो, किसी भी कंट्री से हो, किसी भी सिटी से हैं, आप इस चीज का ध्यान रखना। आपके सबसे क्लोज रिलेटिव जो आपका किसी भी कंडीशन में आपका फेवर करते हैं, दे ऑलवेज थिंक अबाउट योर सक्सेस, दे आर योर पेरेंट्स, दे आर योर पेरेंट्स। इसलिए आपको उनको डिसअपॉइंट नहीं करना बेटे। अगर आप उन्हें डिसअपॉइंट करोगे, so it means you have cheated yourself, and the biggest cheating in this world is the person, biggest cheater in this universe is the person who cheated himself. So I hope nobody will cheat himself or herself. Cheating नहीं होगी ना? No sir. All of you will work hard? Yes sir. Sure? Yes sir. Better result? Yes sir. After 1 year or 1 year 4 months, there must be any university, any college where you should be, जहां जाने के लिए लोग तरसते हैं। अगर आप आज जो बातें मैंने बताई हैं उनको फॉलो करते हुए, मीन्स योर एवरी सेकेंड, योर एवरी एक्शन इज रिलेटेड टू योर स्टडी, दैट्स ऑल एंड नथिंग एल्स। आप नहाने में जल्दीबाजी क्यों कर रहे हैं? जल्दी से नहा के जाऊंगा, पूजा करने के बाद मुझे पढ़ाई करनी है, ठीक है? क्योंकि आप नहाते समय पढ़ाई पास हो रहे हैं। यस, अरे 100 दिन बच्चे हैं, क्या करें बताओ? घर में बहन बेटी की शादी पड़ जाती है तो फादर की हालत कैसी होती है? वो देखते हैं क्या कितने बजे हैं, ये आदमी कितने राउंड लगा के आ गया? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं देखते। एक ही मार्केट की 4 राउंड लगाता आदमी। क्यों? क्योंकि शादी तो 2 ही दिन में फिर फिनिश हो जाएगा, रिलेटिव चले जाएंगे। इज्जत की बात है बाबू, यहाँ भी इज्जत की बात है।
कुछ आपसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं पेरेंट्स? उससे ज्यादा पड़ोसी रखते हैं, उससे ज्यादा रिश्तेदार रखते हैं, अलग अलग तरीके से। अरे पांडे जी लड़के की क्या परसेंटेज आई? पांडे जी बताए तब जब आई ढंग से। सो वर्क पेरेंट्स का सिर नीचे ना होने पाए। मैं जिन बच्चों के टच में रहा हूं, जिनको मैंने इंस्पायर किया है, ऊपर वाले का विशेष कृपा है मेरे ऊपर, जिन बच्चों को मैं इंस्पायर करता हूं वो अपनी लाइफ में जरूर सक्सेसफुल होते हैं। ये आप ना हो तो जो बच्चे यहाँ से सेलेक्ट होके गए हैं एयरफोर्स में, चाहे नोवेस गया है, आईआईटी में चाहे गवनीश गया है, चाहे एनआईटी में सचिन गया है, एनडीए में भी बच्चा सेलेक्ट हुआ, कहीं न कहीं उनकी हमारी मुलाकात हुई थी और हमने उनको हल्का सा हिंट दिया था। गवनीश नाम के बच्चे का मैंने रिकॉर्ड कुछ बच्चों को दिखाया है। बिफोर सिलेक्शन इन आईआईटी 1 year ago, I declared that this student will be selected in JEE Advanced, means first IITian from KCS केतन कॉन्वेंट स्कूल। ये मैंने बताया और इस बार भी बता रहा हूँ मैं, यहाँ पर कम से कम 10-12 लोग एनआईटी ज्वाइन करेंगे, एनआईटी जाएंगे एंड मे भी एक आध आईआईटी में भी चले जाए और नीट क्वालिफाई करेंगे 2-3 लोग, और रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो अच्छे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज है, ये सारी चीजें हैं, आप बहुत अच्छा करने वाले हैं। एक बार फिर से इधर आइए, सबको कवर कीजिए, एक बार सबको कवर कीजिए और एक बार मैं आप सभी को अपनी तरफ से बेस्ट ऑफ लक बोल रहा हूँ आपके आने वाले एग्जाम के लिए। और एंड आई प्रे टू गॉड ये स्टूडेंट इनका जो पॉजिटिव ब्रेन है, नेगेटिव वाला तो किसी भी वाले कोऑपरेट करके भगा देंगे, एम वाले में सीख लेना भाई कैसे निकलता है निकाल दो। पॉजिटिवली हार्डवर्क करो, गॉड आपके साथ है, ईश्वर आपके साथ है, मैं आपके साथ हूँ, पापा मम्मी आपके साथ है, आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। यू विल डेफिनेटली अचीव वॉट एवर यू वांट इन द फ्यूचर, बट यू हैव टू कंसिस्टेंटली बिलीव इन हार्ड वर्क। और जो मैंने शुरुआत जहां से स्पीच की थी वहीं पर खत्म करना चाहूंगा कि जो भी आप पढ़ते हो उसको सोचा जरूर किया करो, जिसको कहा जाता है मनन। क्या कहा जाता है? ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा? जो लोग देखेंगे उनको कुछ एनकरेजमेंट मिलेगा? आज शाम तक अपलोड कर लूंगा, घर पे देख लेना, घर वालों को दिखा भी लेना। थैंक यू।